Hello everyone. In this video, we will continue further the topic capital budgeting, and here we will discuss the principles in identification of investment opportunities. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy of Commerce, where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's understand the principles in identification of investment opportunities. In the earlier video, we discussed how the investment opportunities can be identified and what are the steps involved in that. And here we will discuss what are the principles in identification of investment opportunities. So if you have not gone through the earlier video, please watch that completely to understand the full concept. Here we are talking about identifying investment opportunities in capital budgeting, which is concerned with long-term decision making for investment. So here we will talk about what are the principles in identification of investment opportunities. As we have already discussed in the earlier video that when an investor identifies investment opportunities, there are some series of steps involved in that. Like firstly, he will determine the value, then he considers the risk return trade-off that is associated with that business opportunities. What is the return, what is the level of risk in that business opportunities, as well as he considers the risk tolerance, means risk taking capacity, what is the risk taking capacity of the investor, and after considering all these factors, he takes a final decision to invest in the business opportunities. So apart from that, there are some principles which should be considered by the investor when he takes a decision to identify an investment opportunity. So the investors need to have rules. Without structure and order, they are destined to fail. किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स अगर एक इन्वेस्टर फॉलो करता है तो वह एक राइट डिसीजन ले सकता है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकता है. सो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि उनको फॉलो करने चाहिए. कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेसिक जो कि एक इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए जब वह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करता है. And some of the principles which help investors in taking investment decisions are to select the most profitable project of capital investment. This is the basic principle when an investor identifies an investment opportunity, that he will have to select the most profitable project of capital investment. एक इन्वेस्टर को एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करे, और बिजनेस का जो प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वह उसको अचीव कर सके. एक बिजनेस फर्म अपने प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को तब अचीव कर सकती है जब वह सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करती है जो कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स और रिटर्न्स अर्न करने में हेल्प करता है. So there are some principles which are involved in identification of investment opportunities. What are these? The first one is no investment enjoys as its birthright the promise of consistent high returns. What it means that there is no investment class that will do well simply because of what it is. Means एक इन्वेस्टर को किसी ऐसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज उसका एक ट्रेडिशनल बिलीफ है कि वह उसको हमेशा हाई रिटर्न्स देगी. कई बार इन्वेस्टर्स का एक ट्रेडिशनल बिलीफ होता है कि कुछ कंपनीज हैं या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर हमेशा हाई रिटर्न्स मिलेंगे. बट दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ. इन्वेस्टमेंट मेड एट द रॉन्ग टाइम कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस. इन्वेस्टर्स को कुछ और फैक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए कि किस टाइम पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, क्या उस टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस हाई हो रहे हैं, फ्यूचर में क्या प्राइसेस रहेंगे. तो अगर एक इन्वेस्टमेंट गलत समय पर कर लेगी इस बिलीफ के ऊपर बेस करके कि हमेशा उस पर हाई रिटर्न्स मिलेंगे, तो वह प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती. उसकी वजह से इन्वेस्टर को ह्यूज लॉसेस भी बियर करने पड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड. Like in real estate, there is gradual increase in the market price. Market prices में gradual increase होता है, but there are some drawbacks also, like transaction cost बहुत ज़्यादा high होती है. और अगर एक बार real estate में investment कर ली, प्रॉपर्टी को रीसेल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अगर एक पर्सन को कैश की रिक्वायरमेंट है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीसेल द
property, as well as the person who wants to invest in real estate, that person will need large capital. And in gold is affected by macroeconomic factors. Gold prices are most of the gold prices are affected by macroeconomic factors. No tax advantage is given, as well as there is no regular income in form of dividend or rent while investing in gold. So a person should take a very conscious decision when he want to invest in any business opportunity. Next is role of psychology or human behavior in investing. Economics and accounting are important factors, but the key factor is who likes the investment now and who does not. यहाँ पर की फैक्टर क्या है कि कौन कौन से पर्सन हैं जो कि किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कौन नहीं. यहाँ पर साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर एक रोल प्ले करता है जब एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है. कई बार इन्वेस्टर्स ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पर उनको लगता है कि सभी लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना. जो फ्यूचर चेंजेस हैं वे डिटरमाइन किए जाते हैं कि क्या उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं या फिर कम. तो इन्वेस्टिंग एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है, and the most dangerous thing here is that to buy something at the peak of its popularity. जब किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के जो प्राइजेज हैं या उसको सबसे ज़्यादा लोग बाय करना पसंद करें, जब उसकी पॉपुलैरिटी पीक लेवल पर है, हाईएस्ट लेवल पे है, उस समय अगर उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट की जाए तो वहाँ पर लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं. बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट पर जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जो प्राइजेस पहुँच जाते हैं उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब वह डिक्लाइन हो सकते हैं, बिकॉज उससे आगे वह ग्रो नहीं करेगी. यह वह पॉइंट होता है जब सभी फेवरेबल फैक्ट्स और ओपिनियंस ऑलरेडी उसके प्राइस में फैक्टर हो चुके हैं, उसका प्राइस भी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है और कोई भी ऐसे बायर्स नहीं है जो कि वहां पर इन्वेस्ट नहीं किया जिन्होंने. तो सेफेस्ट और मोस्ट पोटेंशियली प्रॉफिटेबल थिंग क्या रहती है, ऐसी चीज़ों का, ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट करना जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता, जहां पे बायर्स नहीं है बाय करने के लिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना, बिकॉज वह इन फ्यूचर ग्रो करेंगी और प्राइजेस हाई होंगे. जब प्राइजेस हाई होते हैं देन यू कैन रीसेल दैट इन्वेस्टमेंट, that you can resell that security. So given time its popularity and thus its price can only go one way up. Next principle is time and price of investment. This is again a very important principle in identification of investment opportunity. Time of investment and price of investment both should be considered. There is no such thing as good or bad investment idea. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये गुड इन्वेस्टमेंट आइडिया है या बैड इन्वेस्टमेंट आइडिया है. फैक्टर जो कंसीडर करने वाला है कि किस समय इन्वेस्टमेंट की गई है और किस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट की गई है. फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्शन ऑफ गुड कंपनीज इज सर्टेनली नॉट एनफ टू एश्योर गुड रिजल्ट. अगर एक पर्सन एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेता है, यह उसको एश्योर नहीं करता है, गारंटीड नहीं है कि उसको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वहां से हायर रिटर्न्स और हायर प्रॉफिट्स वह अर्न करेगा. कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छी या बुरी है वह किस पर डिपेंड करता है कि उसको किस समय किया गया है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और किस प्राइस पर किया गया है, कितना प्राइस आपने पे किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप नहीं कह सकते दैट इन्वेस्टमेंट इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ओवर प्राइज्ड और सो बैड दैट इट कैन नॉट बी अंडर प्राइज्ड. तो जनरली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इस समय चाहे उसके प्राइजेस उससे प्राइजेस कम है, कम प्राइसेस पे परचेज करो, और फ्यूचर में अगर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे तो वह उसके प्राइजेस फ्यूचर में हाई होंगे, देन यू कैन रीसेल, देन यू कैन अर्न हाई रिटर्न्स ऑन दोज सिक्योरिटीज. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज टू एक्ट एज अ कॉन्ट्रेरियन. Here the basic principle is invest where no one else will, means वहां पर इन्वेस्ट करिए जहां पर कोई और इन्वेस्ट नहीं करेगा. Here the contrarian word is used for the investor, means the investor should behave like a contrarian investor. What is contrarian investor? We should understand it. Contrarian investor is an individual who acts in opposition to the majority, means जो majority के opposition में जाकर काम करता है, जैसा majority of the people करते हैं behave investment opportunity में invest करने के लिए, वैसा behave contrarian investor के द्वारा नहीं किया जाता. So when we will talk about in terms of investing, a contrarian investor is someone who trades against prevailing market sentiments, जो कि prevailing market, जो market के sentiments है उसके against जाकर वह काम करता है.
When the market buys, the contrarian sells and vice versa. जब मार्केट में सभी लोग बाय करना पसंद कर रहे हैं, वह अपने स्टॉक को सेल कर देता है, और जब सभी सेल कर रहे हैं तो वह बाय करता है. तो contrarian investor look for opportunities to buy in a bear market and opportunities to sell in a bull market. So firstly we should understand what is bear and bull market. Bull market is that market that is on rise and where economy is sound. बुल मार्केट वह मार्केट होती है जब स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, राइज पर होते हैं, इकोनॉमी की अच्छी कंडीशंस होती हैं, साउंड कंडीशंस हैं, और स्टॉक प्राइसेस, सिक्योरिटीज के प्राइसेस राइज करते हैं. बियर मार्केट जैसे इसके नेम से क्लियर है, वह ऐसी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है जब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे होते हैं, मीन्स वह प्राइसेस कम हो रहे हैं. तो वह क्या करता है, बियर मार्केट में बाय करता है. बियर मार्केट में जब प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, रिसेशन का टाइम पीरियड होता है, जनरली प्राइसेस कम है तो बाय करता है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर, कम प्राइस पे बाय करता है. और जब बुल मार्केट आती है, मींस प्राइसेस राइज करते हैं, तब उसको सेल करता है, तो उससे वह प्रॉफिट अर्न करता है. तो basic principle in identification of investment opportunity, if you want to earn maximum profits, then the investor should act as a contrarian. Like invest in during recession, it can be a good time to invest. In the words of Warren Buffett, be greedy when others are fearful. Means जब दूसरे इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं तब आप इन्वेस्ट करिए. And Warren Buffett is one of the American contrarian investor. He was a philanthropist, CEO of Berkshire Hathaway, and he is considered as one of the world's most successful investor because he behaved like a contrarian investor, and he buy the securities when the prices were low, when no one likes to buy them, then he sells the securities when the market was high, means the stock prices were rising. As well as if all the positions are analyzed with long term horizon in mind, जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाए तो वह उसको लॉन्ग टर्म होराइजन को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए. बिकॉज कई बार क्या होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट में कुछ स्विंग्स आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं सिक्योरिटीज के प्राइसेस में, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह शॉर्ट टर्म चेंजेस या शॉर्ट टर्म स्विंग्स है मार्केट के, वह नेग्लिजिबल हो जाते हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के प्राइसेस राइज करते हैं. एज वेल एज चूज द कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल्स. जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेता है तो उसको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनके अच्छे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं, मींस उनको फाइनेंशियली स्टडी करना चाहिए इन कंपनीज की पोजीशन को. बिकॉज कई बार होता है शॉर्ट टर्म में कुछ मार्केट स्विंग्स की वजह से उनके प्राइसेस पर इफेक्ट पड़ सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म वहां पर प्राइसेस राइज करते हैं. So these are the principles we should be considered in identification of investment opportunities, and if an investor considers these principles while identifying the investment opportunities, that will help to identify good business opportunity. तो ये principles एक investor को investment opportunities को identify करते समय consider करने चाहिए ताकि वह most profitable project में invest कर सके और firm का profit और wealth maximization का objective achieve किया जा सके. I hope you must have understood this concept very well. In the next video, we will discuss capital busting process. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give a comments in the comment box about how did you like the video.